Good morning, everyone. Welcome in SS Medical classes. I am Dr. A.S.P. Singh, Senior Consultant Dermatologist, Autonomous State Medical College, Pilibhit. So, dear friends and all the respected seniors who are listening this lecture, I hope this lecture will provide important information. Today, I will discuss insulin and its application in the treatment of diabetes mellitus. With this, I want to tell if anyone have any skin problem, may consult. My mobile number is displayed on the screen. So as I told you, today I will discuss insulin and its application for the treatment of diabetes mellitus, and synthesis and formation of insulin, structure of insulin, and what is C-peptide and what is its clinical significance. We will also discuss various types of insulin and uses of insulin, that is its therapeutic application in the treatment of diabetes mellitus. The insulin was discovered in 1921. तो 1921 से पहले इंसुलिन नाम की कोई चीज़ नहीं थी, बिकॉज ये डिस्कवर ही नहीं था. लोगों को डायबिटीज होती थी, इंसुलिन नहीं बनता था, उनका कोई ट्रीटमेंट नहीं था. यदि उसमें इंसुलिन नहीं बना है तो कोई ट्रीटमेंट नहीं था. इट वाज 1921 when insulin was discovered by two Canadian scientists, Frederick Banting and Charles Best, and these scientists were assisted by biochemist James Collip at the University of Toronto. For the discovery of insulin, Nobel Prize was awarded in 1923, and the two scientists who got this Nobel Prize were Frederick Banting and Johann MacLeod. Johann MacLeod was supervisor of Banting. The insulin was made commercially available for the first time in 1923, and it was Eli Lilly and Company, and this company in technical association with Banting, Best and Collip made available insulin commercially, and later on insulin made available commercially by Sanofi and Novo Nordisk. So as in the introduction of insulin, we can say that insulin as I told you, it was discovered by in 1921. Why? Frederick Banting and Charles Best. So as all of you know, insulin is hypoglycemic hormone. Hypoglycemic hormone. इंसुलिन इज हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन. क्या मतलब हुआ इस बात का कि इंसुलिन जो ब्लड में ग्लूकोज है, इंसुलिन क्या करेगा, इसको बॉडी के सेल्स में एंटर करा देगा और ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को क्या करेगा, कम करेगा. तो हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन ब्लड में ग्लूकोज कम करता है. इंसुलिन इज हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन and other property is it inhibits gluconeogenesis in the liver. कहाँ होती है ग्लूकोनियोजेनेसिस? लिवर में होती है, उसको इन्हिबिट करेगा. व्हाट इज ग्लूकोनियोजेनेसिस? Gluconeogenesis is a process by which non-carbohydrate substance, which may be protein or fats or some other substance, are converted into glucose for the purpose of energy formation. तो एज ए रिजल्ट ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस जो ब्लड लेवल है, ब्लड लेवल ऑफ ग्लूकोज क्या करेगा, इंक्रीज करेगा. सो इंसुलिन इनहिबिट्स ग्लूकोनियोजेनेसिस and it also inhibits glycogenolysis. What is glycogenolysis? Lysis means destruction, glycogen का destruction and conversion of glycogen into glucose.
यानी ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज इज नोन एज ग्लाइकोजिनोलाइसिस। तो इंसुलिन आल्सो इनहिबिट्स ग्लाइकोजिनोलाइसिस। तो इससे भी क्या हो, ग्लूकोज ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ता है, तो इंसुलिन इसको भी कवर करता है। इट आल्सो प्रिवेंट्स कीटोजेनेसिस। कीटोजेनेसिस, इंसुलिन आल्सो इनहिबिट कीटोजेनेसिस। तो कीटोन बॉडीज नहीं बनेंगी। कीटोन बॉडीज कब बनेंगी, जब हमारी प्रोटीन या फैट जो है जब यूज होगा एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। सो इंसुलिन इज हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन। इट वाज डिस्कवर्ड इन 1921 बाय फ्रेडरिक बेंटिंग एंड चार्ल्स बेस्ट एंड जेम्स कोलिप, एंड it inhibits gluconeogenesis, glycogenolysis and ketogenesis. Where it is formed, कहाँ बनेगा ये इंसुलिन का फॉर्मेशन, कहाँ हुआ? इट इज फॉर्म इन द बीटा सेल्स ऑफ पैंक्रियाज। इट इज फॉर्म इन बीटा सेल्स ऑफ पैंक्रियाज। तो पैंक्रियाज में अल्फा सेल्स भी होती हैं। अल्फा सेल्स में क्या बनता है, ग्लूकेगॉन बनेगा अल्फा सेल्स में। ये क्या है, ये ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज करेगा। तो इसका नेचर क्या होता है, हाइपरग्लाइसेमिक। ग्लूकेगॉन इज हाइपरग्लाइसेमिक। नाउ वी लुक द सिंथेसिस ऑफ इंसुलिन। तो इंसुलिन इज सिंथेसाइज्ड इन सिक्रेटरी ग्रेन्यूल्स ऑफ बीटा सेल्स ऑफ पैंक्रियाज एज आई टोल्ड यू, and there are different steps. So first of all, we know that in DNA, in insulin DNA, there is a formation of mRNA which is known as transcription. So as a result of formation of mRNA, there is a synthesis of polypeptide which is known as pre-proinsulin. The formation of pre-proinsulin takes place in the nucleus, and this pre-proinsulin comes out of the nucleus. Then there is a cleavage of signal peptide in rough endoplasmic reticulum of the cytoplasm, जिससे क्या बनेगा, प्रो-इंसुलिन बनेगा। तो pre-proinsulin, cleavage of signal peptide in endoplasmic reticulum of the cytoplasm, and there is a formation of pro-insulin. Now you can see in this diagram, this is pro-insulin. If we look the shape of this pro-insulin protein या पेप्टाइड, then it is हिंदी में जैसे 7 बनते हैं, 7 हिंदी में जैसे 7 बनते हैं उस तरीके से शेप है ये, and it is single chain and it is precursor of insulin or active or mature insulin. Pro-insulin is a single chain and is precursor of insulin or active insulin or mature insulin. So we are looking in this diagram, the pro-insulin consists of 2 chain, beta chain. This is beta chain, and this is B chain, and this is A chain, and this is C peptide. If we see the number of amino acid, so in B chain number of amino acid is 31, 30 amino acids. In B chain number of amino acid is 30, and A chain number of amino acid is 20. A chain number of amino acid 21, B chain 30. तो अगर हम इंसुलिन में देखें, क्योंकि हमारी जो एक्टिव इंसुलिन है, मैच्योर इंसुलिन है, उसमें केवल 2 चैन होती है, बीटा चैन और बी चैन एंड ए चैन, और उसमें जो सी पेप्टाइड है दैट इज डी अटैच्ड इन एक्टिव इंसुलिन. सो इन द इंसुलिन देयर इज ए 51 अमीनो एसिड्स. अब इस चीज को कैसे याद रखा जाएगा, जो बी शेप है इट मैचेस विद द 30 में जो 3 की शेप और बी की शेप एक जैसी है, तो हम याद रख सकते हैं कि जो बी चैन है इसमें कितने अमीनो एसिड होंगे, 30 होंगे, और ए चैन में कितने होंगे, 21. तो सगुन दिया जाता है, जब पहले पैसा कम था लोगों के पास तो 21 रुपीज का सगुन देते थे. तो ए चैन 21 अमीनो एसिड
and B chain 30 amino acid. In insulin 51 amino acid. And C peptide consists of 31 amino acid. तो अगर हम प्रो इंसुलिन में देखें, प्रो इंसुलिन में कितने अमीनो एसिड होंगे? 51 प्लस 31, 31 किसके? सी पेप्टाइड के। तो देयर आर 82 अमीनो एसिड इन प्रो इंसुलिन, और इसमें से अगर हम 31 निकाल दें इसके तो 51 अमीनो एसिड इन एक्टिव इंसुलिन। अभी तक हमने क्या सीखा कि देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ प्री प्रो इंसुलिन इन द न्यूक्लियस and from nucleus this pre-proinsulin any peptide chain comes in the cytoplasm, and there is a separation of signal peptide in the rough endoplasmic reticulum of the cytoplasm, and there is a formation of proinsulin. Now this proinsulin is converted into insulin where in cytoplasm in Golgi apparatus के बाद ये जाएगा secretory granules of beta cells. Secretory granules of beta cells में क्या हुआ? There are specific proteases which are known as endopeptidases. These endopeptidases cleaves the proinsulin at two places to remove C peptide, and proinsulin is converted to mature or active insulin. As I told you that this is proinsulin and this is proinsulin, and this proinsulin जो polypeptide endopeptide है, this cleaves this proinsulin at these 2 points, means they deattach C peptide chain and C peptide is deattached. तो रह क्या जाता है फिर इसके बाद A chain and B chain. So up there these two chains A chain and B chains are bonded together by disulfide bonds. So these are disulfide bonds. These are disulfide bonds 1 and 2. These are the disulfide bond here and this one. So there are three disulfide bonds in insulin molecule. Two disulfide bonds are between A chain and B chain. This one and this one. These are interchain, यानी दो चैन के बीच में होते हैं two disulfide bond. The third disulfide bond is between two parts of chain A. This is third disulfide bond between two parts of chain A. So thus insulin molecule have 51 amino acids, 21 in chain A and 30 in chain B, and 3 disulfide bonds. Disulfide bonds. 2 between chain A and chain B, and 1 at two different parts of chain A. The conversion of proinsulin to mature insulin is pH dependent, and this requires ATP, and if there is any disruption in this conversion, so this can lead to increased level of proinsulin and decreased level of insulin. यदि हमारा proinsulin इंसुलिन में चेंज नहीं होगा तो proinsulin का लेवल बढ़ेगा, इंसुलिन का लेवल कम हो जाएगा, which can be an indicator of beta cell dysfunction. और यदि proinsulin लेवल इस हायर साइड में है, इंसुलिन लेवल लोअर साइड में है, तो इट इंडिकेट्स बीटा सेल डिस्फंक्शन एंड देयर इज इंक्रीज रिस्क ऑफ टाइप 2 डायबिटीज. इंक्रीज रिस्क ऑफ टाइप 2 डायबिटीज बिकॉज ऑफ लो इंसुलिन. क्यों लो इंसुलिन है? बिकॉज देयर इज ए पुअर कन्वर्जन ऑफ प्रोइंसुलिन टू इंसुलिन. प्लीज सी दिस डायग्राम. दिस इज प्रोइंसुलिन and this is insulin. This is insulin. So proinsulin is a precursor of insulin, and this is C peptide chain. And you can look every chain A and chain B. At one end there is a carboxyl group, and other end there is a amino group.
and chain A and chain B are connected by two disulfide bond, and there is third disulfide bond between two parts of chain A. What we have learned? What we have learned? Pre-insulin, pre-proinsulin, pre-proinsulin is formed. Pre-proinsulin is formed as a result of DNA. So there is a formation of mRNA, which is known as transcription, and there is a formation of pre-proinsulin. Where in the nucleus. From this pre-proinsulin comes out of the nucleus, and there is a separation of signal peptide. There is a separation of signal peptide in rough endoplasmic reticulum. In the cytoplasm, and there is a formation of proinsulin, which is precursor of active or mature insulin. And from this proinsulin, there is a separation of C-peptide, and there is a formation of active or mature insulin. So we have learned this, and this formation of from proinsulin to the formation of active insulin is a pH dependent, and ATP is consumed. If this process is defective or there is any disruption in this process, then the level of proinsulin increases in the blood and active insulin level decreased, and this may be indicative of beta cell dysfunction, and there may be increased risk of type 2 diabetes. Now we will discuss C-peptide, which is formed from the proinsulin when it is converted to insulin. What is C-peptide? तो as I discussed कि जब when proinsulin is converted into active or mature insulin, then C-peptide is get deattached with the help of proteases such as endopeptidases. So this C-peptide and insulin released in the blood and in almost equal amount as insulin. So C-peptide, what is C-peptide? C-peptide is a polypeptide chain separated from proinsulin produced by the pancreas in same amount as insulin. ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि the amount of C-peptide and insulin endogenously insulin produced is same. Amount is same, and its C-peptide test is used to determine body's own endogenous insulin production. Endogenous, and its production is not influenced by exogenous insulin. हाँ, डायरेक्ट इन्फ्लुएंस नहीं होगा, इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस होगा, क्योंकि इंसुलिन formation or insulin release also depends on the level of glucose when we use exogenous insulin. Then there is a decreased level of endogenous insulin. So that is why C-peptide level will be decreased if we are using exogenous insulin. But जितना endogenous insulin होगा उतना ही C-peptide होगा. लेकिन जो C-peptide है इसका जो डिसइंटीग्रेशन या डिग्रेडेशन C-peptide का मेनली होता है किसमें, किडनी में होगा, and very few amount 5 or 10% is degraded in the liver and over 90% is degraded in the kidney. So its half-life is 3 to 4 times more as compared to insulin. Hence, molar ratio of insulin
and C peptide is less than 1. Due to more half-life of C peptide, insulin is slightly decreased and C peptide is more. तो इंसुलिन और सी पेप्टाइड का जो रेशियो है, मोलर रेशियो ऑफ इंसुलिन एंड सी पेप्टाइड इज लेस देन 1 बिकॉज इंसुलिन इज स्लाइटली लोअर एंड सी पेप्टाइड इज स्लाइटली हायर. यदि ये दोनों इक्वल होते तो रेशियो कितना होता? 1 होता. एंड देयर आर 31 अमीनो एसिड in the C peptide as I told you. And what is the clinical significance of C peptide? So this blood test help differentiate between type 1 and type 2 diabetes. If there is decreased level of C peptide, fasting level of C peptide is decreased, then it means जो एंडोजेनस इंसुलिन प्रोडक्ट है, जो एंडोजेनस इंसुलिन प्रोडक्शन है, इट इज टू मच डिक्रीज्ड. Whenever there is a decrease in insulin production or secretion, there may be diabetes, and this type of diabetes known as type 1 diabetes. And in type 2 usually the C peptide level is on higher side because type 2 diabetes is most commonly due to insulin resistance. Insulin is there, endogenous insulin formation is there. What it is, it cannot be used by the body because of the insulin resistance. So and there is a simultaneously hyperglycemia. So to cover hypoglycemia, pancreas effort to make more endogenous insulin. Hence type 2 diabetes C peptide level is more. What in rare condition, when pancreas beta cells are not able to produce endogenous insulin to cover hyperglycemia, then in type 2 diabetes also C peptide level will be on lower side. And this test also help to find out insulin resistance and causes of hypoglycemia. Causes of hypoglycemia such as pancreatic tumor, insulinoma. There is a increased production of insulin, so there is a hypoglycemia. And there are some other causes of hypoglycemia we will discuss in the later on. हेलो, नमस्कार जी, नमस्कार. हाँ ठीक, करेंगे, कुछ जुगाड़ करते हैं. ठीक है, व्यवस्था करते हैं. ठीक है. And especially useful for the diagnosis of latent autoimmune diabetes in adults. Latent autoimmune diabetes in adults, which is known as LADA, or type 1-5 diabetes and PCOS. So what is the normal level of C peptide? Normal level of C peptide is 0.9 to 1.8 nanogram per deciliter, or more commonly we can say it is 0.2 to 2 nanogram per deciliter in fasting stage, and postprandial level is 3 to 9 nanogram per ml. And एक कंडीशन है जिसमें हम कहेंगे कि एंटी इंसुलिन एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन होता है, एंड दीज एंटीबॉडीज बाइंड टू बोथ थ्रू इंसुलिन एंड सी पेप्टाइड. सो if there are increased titer of anti-insulin antibodies that bind to both proinsulin and C-peptide, it give false positive results. यानी falsely C-peptide value may come as increased. And as I told you कि degradation अगर हम देखें तो degradation partially in liver and mainly in kidney. Hence, in the presence of kidney disease, the degradation of C-peptide is affected. So, in kidney disease, C-peptide level is increased. Now,
अगर हम सी पेप्टाइड टेस्ट कराएं लैब में तो व्हाट विल हैपन कि द वैल्यू मे कम लो सी पेप्टाइड और इट मे कम नॉर्मल और इट मे कम हाई. So we will discuss here what is the significance of low C peptide. If value comes on lower side, then it is significant only when blood sugar is high. If there is a hypoglycemia, भले ही हमने कोई डाइट ली हो ना ली हो, व्हाट एवर द रीजन, तो उसमें सी पेप्टाइड लेवल कम आएगा ही, क्योंकि इंसुलिन का सीक्रेशन ही कम होगा. इंसुलिन सीक्रेशन आल्सो डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ ग्लूकोज. इफ ग्लूकोज का लेवल ब्लड में ज़्यादा होगा तो इंसुलिन ज़्यादा मात्रा में सीक्रेट होगा, इंसुलिन का लेवल कम होगा तो कम मात्रा में सीक्रेट होगा. तो इफ देयर इज हाइपोग्लाइसीमिया एंड low C peptide level, then it is insignificant. So low C peptide level is only significant when blood sugar is high, and it suggests insufficient endogenous insulin production. Insufficient endogenous insulin production. A low level of C peptide may be considered normal if your blood sugar is low and you have not eaten recently. Many medical conditions that can lead to low peptide level, these are type 1 diabetes, as I discussed before. A fasting C peptide level of less than 0.6 nanogram per ml is consistent with beta cell failure and predicts the requirement of insulin therapy. That is, it suggests type 1 diabetes mellitus. And in type 2 diabetes mellitus, as I discussed, if low C peptide level is there, it is due to insulin resistant and a beta cell failure. In latent autoimmune diabetes in adults, which is known as LADA, latent autoimmune diabetes, तो अगर हमारा सी पेप्टाइड लेवल जो है कम आ रहा है तो इट में इंडिकेट दैट देयर इज चांसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस इज, और देयर आर चांसेस आर पॉसिबिलिटी. जिस कंडीशन में होती है उसे हम कहते हैं लैटेंट ऑटोइम्यून डायबिटीज इन एडल्ट्स, इसे हम लाडा कहते हैं. एंड द नेक्स्ट काज ऑफ लो सी पेप्टाइड इज हाइपोग्लाइसीमिया. बिकॉज इन द प्रेजेंस ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया द अमाउंट ऑफ इंसुलिन डिक्रीज्ड इज लो. नाउ एज आई टोल्ड यू कि इन फास्टिंग कंडीशन फॉर लॉन्ग पीरियड्स there is a blood glucose level low, hence low insulin secretion, hence low peptide value, low C peptide value. And next cause of low C peptide is undergoing insulin therapy, because if we give exogenous insulin, it reduces glucose level. When there is a low blood glucose level, there is low amount of endogenous insulin production, and whenever there is a low amount of endogenous production, the C peptide level production is also low, because दोनों का प्रोडक्शन कितना होता है, इन इक्वल अमाउंट में होता है, एक का कम होगा तो दूसरे कम होगा. एंड C peptide level also may be used for the monitoring of treatment of diabetes. सपोज हम अगर कोई डायबिटीज की ओरल मेडिसिन दे रहे हैं, ओरल मेडिसिन क्या करेगी, इंसुलिन की रिलीज करेगी, इंसुलिन को रिलीज करेगी. अब इंसुलिन रिलीज नहीं हो रहा है, इंसुलिन और हमारी सी पेप्टाइड कम आ रही है, इसका मतलब जो एंडोजिनस प्रोडक्शन है इंसुलिन का, वो हम जो मेडिसिन दे रहे हैं उसको देने के बावजूद भी कम हो रहा है एंडोजिनस इंसुलिन का प्रोडक्शन, तो हमारी डायबिटीज इज नॉट वेल कंट्रोल्ड. सो डायबिटीज ट्रीटमेंट व्हाट एवर वी आर गिविंग इज नॉट वर्किंग वेल. अगर ये वर्क करता होता तो इंसुलिन का सीक्रेशन नॉर्मल होता और हमारी सी पेप्टाइड की वैल्यू नॉर्मल आती. बट द प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन्स टेक प्लेस इन द लिवर, सो इन द प्रेजेंस ऑफ लिवर डिजीज द अमाउंट ऑफ सी पेप्टाइड बिकम्स लो. एंड नेक्स्ट कंडीशन इज एडिशंस डिजीज. एडिशंस डिजीज इज ड्यू टू इज एसोसिएटेड विद लो कॉर्टिसोल लेवल. को जो एडिनल ग्लैंड है हमारी किडनी के ऊपर, उसमें जब कॉर्टिसोल का लेवल लो होगा तो इसकी वजह से क्या होगा, लो ब्लड शुगर होगी
क्योंकि कॉर्टिसोल लेवल जो है वो क्या करेगा, हमारी मसल्स में जो यूटिलाइजेशन होता है ग्लूकोज का उसको प्रिवेंट करता है। सो दैट इज वाई ब्लड, अब जब कॉर्टिसोल लेवल ही कम होगा तो ब्लड शुगर भी कम होगी, क्योंकि मसल्स में यूटिलाइजेशन बहुत बढ़ेगा ग्लूकोज का। दैट इज वाई ब्लड शुगर लेवल will be low and there will be low BP. In Addison's disease, there is a low BP, low cortisol and low C-peptide level. Now we will learn the causes of high C-peptide. So high C-peptide level indicates the body's production endogenous insulin increased amount. High C-peptide value indicates the body is producing a lot of insulin, and the high C-peptide level may be due to pancreatic tumor, and most common is insulinoma. Pancreatic tumor, insulinoma, if is there, then there will be higher amount of insulin which is secreted from the pancreas. If there is a insulin resistance, and it is common in type 2 diabetes, and next cause is kidney disease. As I told you, whenever there is a kidney disease, there is decreased degradation of C-peptide, hence C-peptide level increase in kidney disease. And hypokalemia, Cushing syndrome. In Cushing syndrome, the हमारा cortisol level क्या है, increase होगा, and it prevents the utilization of glucose in the muscles. That is why blood glucose level is increased and there is a hyperglycemia, and to overcome this hyperglycemia there is a increased secretion of insulin, so value of C-peptide is increased in Cushing syndrome. And obesity after meal, जो आफ्टर मील लेवल है इट इज 3 to 4 नैनोग्राम per ml, and in pregnancy. So these are common causes of high C-peptide: pancreatic tumor, insulinoma, insulin resistance which is common in type 2 diabetes, kidney disease, hypokalemia, Cushing syndrome, obesity after meal, and pregnancy. And the value of C-peptide may be normal and can sometimes be seen in type 2 diabetes. When our treatment is effective, so it is normal, and especially in early stages. Now, we will discuss the differential diagnosis of fasting hypoglycemia with hyperinsulinism. हमारा जो ब्लड का लेवल है, लो ब्लड शुगर लेवल है और इंसुलिन अमाउंट ज़्यादा सीक्रेट हो रहा है, तो इसकी डिफरेंशियल डायग्नोसिस में सी पेप्टाइड का रोल है. एज वी हैव रीड कि इन द प्रेजेंस ऑफ पैंक्रेटिक ट्यूमर which is commonly insulinoma, C-peptide level is elevated, and insulinoma, higher insulin in the blood, and hypoglycemia. Next cause is hypoglycemia is exogenous insulin. अगर हम exogenous insulin दे रहे हैं तो it may cause hypoglycemia, और इसे कहते हैं factitious. What in this condition, when we give exogenous insulin, then C-peptide level is decreased, and if we are giving sulfonyl urea therapy, तो C-peptide level is elevated. अगर इसकी वजह से हमारी हाइपोग्लाइसीमिया है सल्फोनाइल यूरिया की वजह से, तो C-peptide level is elevated. एंड नेक्स्ट काज ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया का क्या है, इंसुलिन ऑटोइम्यून सिंड्रोम, एंड इट इज ड्यू टू एंडोजिनस एंटी इंसुलिन एंटीबॉडीज. इसे हिराटा डिजीज कहते हैं, और हिराटा डिजीज में क्या है, सी पेप्टाइड इज नॉट एलिवेटेड. हाइपोग्लाइसीमिया में भी हाइपोग्लाइसीमिया होगी, देयर विल बी हाइपर इंसुलिनीमिया एंड एंटी इंसुलिन एंटीबॉडीज विल बी पॉजिटिव. What C-peptide is not elevated in Hirata disease, that is insulin autoimmune syndrome, which is due to endogenous anti-insulin antibodies. And next cause of hypoglycemia is exogenous insulin therapy. I have discussed.
if there will be hypoglycemia with decreased C-peptide level. Now, we will discuss various types of insulin. And insulins are classified on the basis of onset of action and peak value and duration of action. कितनी देर में एक्शन स्टार्ट होगा, पीक कब आएगी और कितनी देर तक एक्शन होगा, इस बेसिस पे इंसुलिन आर क्लासिफाइड. तो इंसुलिन्स मे बी रैपिड एक्टिंग इंसुलिन. रैपिड एक्टिंग इंसुलिन कौन से हैं मेनली? एक इंसुलिन एस्पार्ट, इंसुलिन लिस्प्रो, इंसुलिन ग्लूलिसीन. इंसुलिन एस्पार्ट, इंसुलिन लिस्प्रो, इंसुलिन ग्लूलिसीन. नाउ वी विल सी व्हाट इज इंसुलिन एस्पार्ट. तो इसका जो अगर ब्रांड है नोवो रैपिड. अब ये इंसुलिन एस्पार्ट कैसे बनता है? हमें पता है कि एक चैन बी है इंसुलिन में, एक चैन ए है इंसुलिन में. ठीक है, चैन ए है, ये बी चैन है, ये ए चैन है. इसमें 21 अमीनो, ये हमारा अमीनो टर्मिनल है, ये हमारा कार्बोक्सिलिक टर्मिनल है, और इसमें क्या है? ये अमीनो एसिड है. बी चैन में कितने अमीनो एसिड है? 30. तो जो 28 अमीनो एसिड है, B28 अमीनो एसिड, इसमें होता है प्रोलीन. क्या होता है? प्रोलीन. तो दिस प्रोलीन इज रिप्लेस्ड बाय एस्पार्टिक एसिड. यानी प्रो B28 इज रिप्लेस्ड बाय B28 एस्पार्टिक एसिड, और हमारा क्या बन जाता है? इंसुलिन एस्पार्ट बन जाता है. इससे क्या होगा? इससे जो हमारा इंसुलिन मॉलिक्यूल में एक टेंडेंसी होती है हेक्सामर बनाने की टेंडेंसी होती है, जिसकी वजह से वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, उसका एब्जॉर्प्शन डिले होता है. तो दिस टेंडेंसी इज डिक्रीज्ड बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ B28 प्रोटीन बाय द B28 एस्पार्टिक एसिड. सो द एब्जॉर्प्शन क्या होगा? एब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाता है, और ये कैसा बन जाता है? रैपिड एक्टिंग इंसुलिन. सेकेंड नंबर पे हमारा इंसुलिन लिस्प्रो. इसका ब्रांड है ह्यूमालॉग. इसमें क्या होगा? जो 20 नंबर का अमीनो एसिड प्रोलीन होता है, और 29 नंबर का जो अमीनो एसिड रेजिड्यू होता है, वो क्या होता है? वो लाइसिन होता है. इंसुलिन की जो बी चैन होगी, उसमें 28 पे प्रोलीन, 29 पे क्या होगा? लाइसिन. तो हम रिप्लेस कर देते हैं, इसको इंटरचेंज कर देते हैं. प्रोलीन को पहुंचा देते हैं 29 पे, और लाइसिन को 28 पे पहुंचा देते हैं. बस इतना करने से ये हमारी इसका एब्जॉर्प्शन क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है, और हेक्सामर बनाने की जो टेंडेंसी है वो डिक्रीज हो जाएगी, और एब्जॉर्प्शन रेट इंक्रीज हो जाएगा. एंड नेक्स्ट इज इंसुलिन ग्लूलिसाइन. इसका ब्रांड नेम है एपिड्रा. तो हमने क्या पढ़ा अभी तक? हमने पढ़ा इंसुलिन्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ऑनसेट ऑफ एक्शन, पीक लेवल एंड ड्यूरेशन ऑफ एक्शन. तो कितने टाइप के होते हैं? रैपिड एक्टिंग इंसुलिन एंड अल्ट्रा रैपिड एक्टिंग इंसुलिन एंड शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन एंड इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन एंड लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन. इतने टाइप के होते हैं. इसमें से हमने रैपिड एक्टिंग इंसुलिन के बारे में पढ़ा कि इंसुलिन एस्पार्ट, जिसका ब्रांड नेम है नोवो रैपिड, और हमने पढ़ा ये रैपिड एक्टिंग इंसुलिन में इंसुलिन लिस्प्रो है, इसका ब्रांड नेम है ह्यूमालॉग, और हमने पढ़ा द रैपिड एक्टिंग इंसुलिन है इंसुलिन ग्लूलिसाइन, इसका ब्रांड नेम क्या है? एपिड्रा. अब हम आगे पढ़ेंगे अल्ट्रा रैपिड एक्टिंग इंसुलिन. पढ़ेंगे.
अल्ट्रा रैपिड एक्टिंग इंसुलिन। तो ये दो हैं, एक है जिसका नाम है फास्टर एक्टिंग इंसुलिन एस्पार्ट, एक तो इंसुलिन एस्पार्ट आपने पढ़ा, वो क्या है, रैपिड एक्टिंग इंसुलिन है। ये क्या है, फास्टर एक्टिंग इंसुलिन एस्पार्ट, एक तो प्लेन आता है, एक फास्टर एक्टिंग आता है। तो फास्टर एक्टिंग इंसुलिन जो कहलाता है अल्ट्रा रैपिड एक्टिंग इंसुलिन, इसका नाम है फास्टर एस्पार्ट, इसका ब्रांड नेम है फियास, फियास। दूसरा है इंसुलिन लिस्प्रो, जिस एक तो प्लेन इंसुलिन लिस्प्रो है जो हमने पढ़ा रैपिड एक्टिंग इंसुलिन, और अल्ट्रा रैपिड एक्टिंग इंसुलिन है उसका नाम है इंसुलिन लिस्प्रो AABC, इसका शॉर्ट में लिखते हैं URLI, यानी अल्ट्रा रैपिड लिस्प्रो इंसुलिन, अल्ट्रा रैपिड लिस्प्रो इंसुलिन, ब्रांड नेम है लाइउम जॉब। नाउ वी विल सी व्हाट इज रैपिड और फास्टर एक्टिंग इंसुलिन एस्पार्ट और फास्टर एस्पार्ट, ब्रांड नेम इज फियास। तो फियास is insulin aspart and it is formulated with nicotinamide to increase absorption and amino acid arginine to increase stability. तो insulin aspart when formulated with nicotinamide and amino acid L-arginine, then it becomes rapid or faster acting insulin aspart, and this appears in the blood approximately twice as fast as insulin aspart. जो प्लेन इंसुलिन एस्पार्ट है हमारा, इंसुलिन जो एस्पार्ट है, जो रैपिड एक्टिंग इंसुलिन है, इसके मुकाबले में इसका जो है वो इट अपियर्स ट्वाइस एज फास्ट इन द ब्लड, 2 गुना ज्यादा तेजी से ब्लड में अपियर होता है। कौन सा, रैपिड और फास्टर एक्टिंग इंसुलिन एस्पार्ट, किसके मुकाबले में, इंसुलिन एस्पार्ट के मुकाबले में। एंड इट मिमिक फिजियोलॉजिकल रिलीज ऑफ इंसुलिन इन द बॉडी and it controls blood sugar more quickly after meal, और इससे क्या फायदा हुआ, it reduces postprandial spikes। बहुत सारे डायबिटिक लोगों में खाने के 2 घंटे बाद जो स्पाइक्स आते हैं, चाहे भले वो आधे घंटे के लिए आते हो, 1 घंटे के लिए आते हो, इससे जो हमारी बॉडी के ऑर्गन में जो हार्मफुल इफेक्ट है वो हो जाता है। तो यदि और अगर इसके बाद हमारा ब्लड शुगर नॉर्मल हो जाए और 1 घंटे का स्पाइक आ जाए, तो जो हमें नुकसान, जो डैमेज होनी होती है वो हो जाती है। इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रिवेंट दीज पोस्टप्रेंडियल स्पाइक्स। तो टू प्रिवेंट दीज पोस्टप्रेंडियल स्पाइक्स वी शुड यूज रैपिड एक्टिंग इंसुलिन एस्पार्ट और एनी और इंसुलिन लिस्प्रो AABC। नाउ दिस इज इंसुलिन लिस्प्रो AABC आणि वी कैन से रैपिड एक्टिंग इंसुलिन लिस्प्रो। तो इंसुलिन लिस्प्रो is combined with treprostinil, which increase absorption by vasodilatation, and it with citrate, which increases absorption by increasing permeability. When insulin lispro is combined with treprostinil and citrate, then its absorption increases and onset of action become short, बहुत जल्दी onset of action इसका बहुत शॉर्ट हो जाता है, बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है, लाइक फास्ट एक्टिंग इंसुलिन। थर्ड है शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन। शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन आल्सो नोन एज रेगुलर इंसुलिन, इसको हम रेगुलर इंसुलिन भी कहते हैं, प्लेन इंसुलिन भी कहते हैं और सॉल्युबल इंसुलिन भी कहते हैं। जब किसी मेडिकल स्टोर पर जाते हैं तो उनका एक आध नाम रटा होता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए ये सारे नाम हमारी शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन के हैं या प्लेन इंसुलिन के हैं। इसका जो ऑनसेट ऑफ एक्शन है वो हमारा कितनी देर में होता है, आधे घंटे से 1 घंटे में होता है। इसकी पीक 2 to 4 आवर में आती है और ड्यूरेशन ऑफ एक्शन कितना होता है, 4 to 6 आवर। ये जो हमारे, हम एक चीज बताना भूल गए, जो हमारे ये रैपिड एक्टिंग इंसुलिन थे, रैपिड एक्टिंग इंसुलिन, इंसुलिन एस्पार्ट, इंसुलिन लिस्प्रो, इंसुलिन ग्लूलिसाइन, इसका जो ऑनसेट ऑफ एक्शन है वो कितना है, इसका ऑनसेट ऑफ एक्शन 15 to 30 मिनट्स है इन सभी का, और इनकी पीक कितनी है 1 आवर, और ड्यूरेशन ऑफ एक्शन कितना है 4 to 5 आवर। जो हमारी अल्ट्रा रैपिड इंजेक्शन, अल्ट्रा रैपिड एक्टिंग इंसुलिन, कौन कौन से हमने पढ़ा था, एक तो फास्टर एस्पार्ट है, दूसरा हमारा
इंसुलिन लिस्प्रो AABC। इसका जो एक्शन ऑफ ड्यूरेशन है 5 मिनट टू लेके 10 मिनट होता है। ऑनसेट ऑफ एक्शन 5 to 10 मिनट। और बाकी जो पीक है वो वही आती है 1 आवर। एक्शन ऑफ ड्यूरेशन, ये ड्यूरेशन ऑफ एक्शन कितना है 4 to 5 आवर। और कोई डिफरेंस नहीं है, बस इनमें ऑनसेट ऑफ एक्शन क्या है, शॉर्ट हो गया है। तो अल्ट्रा रैपिड एक्टिंग इंसुलिन में ऑनसेट ऑफ एक्शन कितना हो गया 5 to 10 मिनट एंड इट इज 15 to 30 मिनट इन रैपिड एक्टिंग इंसुलिन। शॉर्ट एक्टिंग में क्या है, हाफ आवर टू 1 आवर ऑनसेट ऑफ एक्शन। पीक भी 2 to 4 आवर है। एक्शन ऑफ ड्यूरेशन कितना है 4 to 6 आवर। नाउ वी विल सी इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन। तो इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन इज नोन एज NPH। फुल क्या है इसकी फुल फॉर्म, न्यूट्रल प्रोटामीन हेजेडॉन और आइसोफेन इंसुलिन। इस ऑनसेट ऑफ एक्शन 2 to 3 आवर्स, पीक 6 to 8 आवर्स, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन 12 to 18 आवर्स। एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था चार्ल्स क्रिश्चियन हेजेडॉन। उन्होंने क्या किया कि जो ह्यूमन इंसुलिन है, ह्यूमन इंसुलिन में क्या मिलाया उन्होंने, प्रोटामीन। और प्रोटामीन जब मिलाया तो उन्होंने देखा कि इसका एब्जॉर्प्शन कैसा हो जाता है। ह्यूमन इंसुलिन में उन्होंने मिलाया प्रोटामीन मिलाया तो उन्होंने देखा कि इस प्रोटामीन के मिलाने से इसका एब्जॉर्प्शन हो जाता है स्लो। इसकी जो एक्शन ऑफ ड्यूरेशन है, जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो इंक्रीज हो जाती है। तो तब उन्होंने ये बनाया NPH। उनके सम्मान में इसके नाम में हेजेडॉन लिखते हैं। साइंटिस्ट थे चार्ल्स क्रिश्चियन हेजेडॉन। 1946 में ये काम हुआ था। अब हम देखेंगे लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन। तो लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन हमारे 3 होते हैं। एक तो डिटेमिर होता है एंड सेकंड इज ग्लार्जिन, थर्ड इज डेग्लूडेप। डिटेमिर कम्स विद द ब्रांड लेमेबिल, ग्लार्जिन brand name is Lantus and Degludec brand name is Tresiba। एंड एक इंसुलिन और होता है जिसे कहते हैं जिसको कहते हैं हम एफ्रेजा एंड इट इज टेकन बाय इनहेलेशन। अब तक हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा इंसुलिन आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ऑनसेट ऑफ एक्शन, पीक एंड ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। कितने टाइप के इंसुलिन होते हैं, रैपिड एक्टिंग इंसुलिन होते हैं और अल्ट्रा रैपिड एक्शन इंसुलिन होते हैं और शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन होते हैं एंड लॉन्ग इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन होते हैं। इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन, ठीक, और लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन होते हैं। रैपिड एक्टिंग इंसुलिन में हमने पढ़ा इंसुलिन एस्पार्ट, इंसुलिन डिस्प्रो एंड इंसुलिन ग्लूलीसाइन। ठीक। शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन हमने पढ़ा रेगुलर इंसुलिन। इनका जो ऑनसेट ऑफ एक्शन कितना होता है 15 to 30 मिनट होता है, पीक इनकी 1 आवर होती है और ड्यूरेशन ऑफ एक्शन 4 to 5 आवर होता है। शॉर्ट एक्टिंग में जो ऑनसेट ऑफ एक्शन कितना होता है हाफ टू 1 आवर होता है, पीक इनकी 2 to 4 आवर होती है, एक्शन ऑफ ड्यूरेशन कितना होता है 4 to 6 आवर होता है। इंटरमीडिएट एक्टिंग में ऑनसेट ऑफ एक्शन 2 to 3 आवर, पीक 4 to 6 आवर और ड्यूरेशन ऑफ एक्शन कितना होता है 12 to 18 आवर्स। लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन में क्या है हमने पढ़ा, ये कौन कौन से होते हैं, इंटरमीडिएट एक्शन कौन सा होता है NPH होता है, न्यूट्रल प्रोटामीन हेस्डॉन। लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन में हमने पढ़ा क्या होता है डिटेमिर होता है, डिटेमिर, ब्रांड नेम लेमिविर एंड ग्लार्जिन एंड डेग्लूडेक। ये ट्रेसिबा है, लेंटस और लेमिविर। इसका जो एक्शन ऑफ ड्यूरेशन है वो 24 आवर होता है और इसमें क्या है ऑनसेट ऑफ एक्शन तो है ये 3 to 4 आवर है, बट इसमें क्या है पीक नहीं होती। बस एक बार ये आ गए एक्शन में तो ये पीक नहीं होती, नो पीक। लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन में नो पीक एंड दीज आर गिवन एट बेड टाइम।
बेड टाइम का मतलब लंच, डिनर टाइम, रात में देते हैं फिक्स टाइम में। नाउ कैलकुलेशन ऑफ टोटल डेली डोजेस, टोटल डेली डोजेस को हम कहेंगे TDD, टोटल डेली डोजेस ऑफ इंसुलिन, यानी डिफरेंट टाइप ऑफ रेजिमेंट्स। द डोज डिपेंड, किस बात पर डिपेंड करेगी? फिजिकल एक्टिविटी, कि कितना फिजिकल एक्टिविटी पेशेंट करता है। अगर उसने डोज फिक्स कर रखी है और किसी दिन फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा की और किसी दिन अगर कम की तो उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा। यदि फिजिकल एक्टिविटी यूजुअल से ज़्यादा की तो उसे हाइपोग्लाइसीमिया हो सकती है एक फिक्स डोज पे। बॉडी वेट पे डिपेंड करेगा, बॉडी वेट नॉर्मल है या अंडर वेट है या ओबीज है, इस पर डिपेंड करेगा। अमाउंट ऑफ डाइट और मील पे डिपेंड करेगा। ये बहुत ही बेसिक फैक्टर है, कितना वो लंच, कितना ब्रेकफास्ट करता है, कितना लंच लेता है, कितना डिनर लेता है, कितनी चपाती खाता है, 4 खाता है, 6 खाता है, 8 खाता है, 2 खाता है। तो इस बात पे इसका अमाउंट डिपेंड करता है डोज का। इंसुलिन सेंसिटिविटी और रेसिस्टेंस, अगर हम इंसुलिन दे रहे हैं उसको अगर कई बार देने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, ब्लड शुगर लो नहीं होता, इसका मतलब इंसुलिन रेजिस्टेंस है। अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस है तो एज पर माई एक्सपीरियंस पेशेंट को क्या देना चाहिए? जिंक देना चाहिए। जिंक से रेजिस्टेंस कम होता है। विटामिन D3 देना चाहिए, विटामिन D3, और उसको ओमेगा 6 फैटी एसिड की डोज कम करनी चाहिए और ओमेगा 3 फैटी एसिड देना चाहिए। तो इफ इंसुलिन रेजिस्टेंस इज सस्पेक्टेड, और बॉडी वेट कम करना चाहिए। तो ये इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करने के उपाय हैं: जिंक, विटामिन D3 एंड रिड्यूस ओमेगा 6 फैटी एसिड एंड इंक्रीज ओमेगा 3 फैटी एसिड एंड प्रेजेंस ऑफ एब्सेंस ऑफ फीवर। अगर फीवर है तो उसका कंजप्शन ज़्यादा होगा, तो उस समय उसकी डोज चेंज हो जाती है। अब ये डिफरेंट रेजिमेंट्स हैं कि अगर अंडर वेट है कोई या ओल्डर एज है या हीमोडायलिसिस हो रही है तो उसका इंसुलिन अगर हमें TDD डिसाइड करना है, देन व्हाट डोज इज गिवन? 0.3 यूनिट्स पर केजी बॉडी वेट पर डे, बॉडी वेट पर डे। If patient is having normal weight, then we give 0.4 units per kg body weight. And if it is overweight, then we give 0.5 units per kg body weight. And it is obese, or there is insulin resistance, or increased level of glucocorticoids, or patient is taking steroid externally, or having Cushing syndrome, then dose is 0.6 units per kg body weight. Now, इसमें दो रेजिमीन है, जो रेजिमीन है इसमें, रेजिमीन की स्पेलिंग गलत हो गई है, रेजिमीन जी है, ठीक है जी, रेजिमीन। तो एक का नाम है बेसल बोलस रेजिमीन। इसके 2 पार्ट्स हैं। एक हम देते हैं बेसल डोज। बेसल डोज किसकी देंगे? बेसल डोज इज गिवन ऑफ लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन। लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन हमने बताया डीटेमेर है, ग्लार्चिन है, लेंटस है और या डेग्लूड है, जिनमें से कोई भी सिलेक्ट करते हैं। इसका काम क्या होता है? टू मेंटेन बेसल इंसुलिन लेवल। बेसल इंसुलिन लेवल को ये मेंटेन करता है। जो बेसल डोज होती है, जो लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन की जो बेसल डोज देते हैं, इट मेंटेन बेसल इंसुलिन लेवल एंड प्रिवेंट रिलीज ऑफ ग्लूकोज बाय लिवर ड्यूरिंग फास्टिंग एंड बिटवीन मील्स। तो मील्स के बीच में हमारा लिवर क्या करता है? ग्लूकोज रिलीज करता है, तो उसको ये प्रिवेंट करेगा। दूसरी बात, फास्टिंग के दौरान जो लिवर ग्लूकोज रिलीज करेगा उसे प्रिवेंट करता है बेसल डोज ऑफ लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन। एंड सेकेंड वी गिव प्री मील बोलस डोज ऑफ इंसुलिन। जो हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद में हमारी जो इंसुलिन बढ़ेगी, हाइपरग्लाइसीमिया होगी, उसको कंट्रोल करने के देते हैं। तो जो बेसल बोलस है, बेसल डोज है, वो बेसल लेवल मेंटेन करता है फॉर 24 आवर। एंड जो प्री मील बोलस इंसुलिन की डोज देते हैं, दैट इज फॉर पोस्ट मील इंड्यूस्ड हाइपरग्लाइसीमिया। तो हम इसको क्या देते हैं? इसमें हम रैपिड एक्टिंग इंसुलिन देंगे, इंसुलिन एस्पार्ट और लिस्प्रो और ग्लूडिसिन। इसका ऑनसेट ऑफ एक्शन हमने बताया 15 से 30 मिनट होता है। और भी कैन गिव शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन। सो 50%। अब कितना देंगे हम बेसल डोज में? हमने TD भी कैलकुलेट TDD यानी टोटल डेली डोज। तो जितनी भी आएगी उसका 50% हम रखेंगे बेसल डोज में और उसका 50% हम रखेंगे मील बोलस डोज में। और
जो भी हमारी मील बोलस डोज आएगी उसको हम नंबर ऑफ मील्स में डिवाइड करेंगे। तो प्रत्येक मील से पहले जो भी आएगी 50% ऑफ द टीडीडी उसको हम डिवाइड करेंगे 3 पार्ट्स में, अगर हम 3 टाइम्स मील लेते हैं तो प्री मील टाइम बोलस डोज एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू हाउ मच पेशेंट आर एक्चुअली ईटिंग। अगर कोई पेशेंट आधा खाया, किसी दिन उसने कम खाया तो फिर हम उसको कम करेंगे, ज़्यादा खाया तो उसको बढ़ा सकते हैं, एडजस्ट करनी होती है। प्री मील टाइम जो बोलस डोजेज है इट रिक्वायर एडजस्टमेंट। यूजली जो चपाती है, अगर हम चपाती खाते हैं एक तो 2 से 4 यूनिट हमें चाहिए होती है। अब जितनी चपाती खाएं जो भी खाएं उसके अनुसार कैलकुलेट करके लगा लेते हैं। withheld if patient are not eating or if their pre-meal glucose level is less than 70। यदि कोई खाना नहीं खा रहा है तो उसका ब्लड शुगर लेवल 70 है तो हम इसको नहीं देंगे। फिर एक तो हो गई हमारी बेसल डोज, दूसरी हो गई मील बोलस डोज, थर्ड इसमें देते हैं करेक्शन रिक्वायरमेंट। सपोज हमने खाने से पहले अगर हमने ब्लड ग्लूकोज किया, हमारा 250 आया तो हमें कितने पर रहना चाहिए, 140 भी रखना चाहिए। तो हमारा कितना ज़्यादा हुआ, ज़्यादा हुआ हमारा ये ज़्यादा हुआ 110, तो हमें इसे करेक्ट करना है। तो हम क्या देंगे, एक तो बेसल डोज प्लस मील बोलस डोज, फिर करेक्शन डोज देंगे। करेक्शन डोज किस बात पर डिपेंड करेगी, देखो इसमें देखते हैं इसको। मीजर ब्लड ग्लूकोज बिफोर मील, इफ हाइपरग्लाइसीमिया देन करेक्शन डोज ऑफ इंसुलिन इज आल्सो गिवन along with मील डोज ऑफ इंसुलिन। इफ पेशेंट इज नॉट टेकिंग मील then correction dose is given, only correction dose is given। अब एक चार्ट है ये, इसको देखते हैं। तो इसमें दो हैं, एक तो लो डोज में करेक्शन डोज है, जो करेक्शन स्केल है वो लो डोज, मॉडरेट डोज एंड हाई डोज। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि उनका जो है टीडीडी कितना है, टीडीडी कितना है, इस बात पर डिपेंड करेगा। तो फॉर एवरी 40 मिलीग्राम ऑफ अगर बड़ा है तो हमारा जो 1 यूनिट कितना कम करेगी, ये हमारी करेक्शन डोज होती है। तो यदि हमारा 40 से 180 है तो हम उसे 1 यूनिट देंगे, इसका मतलब हमारी 1 यूनिट कितना कम करेंगे, 40। तो इस प्रकार से 40 के रेशियो में, 40 के रेशियो में जितना भी हमारा बड़ा होगा तो हम 1 यूनिट के लिए कितना देंगे, 1 ईच। फॉर ईच 40 to 50 मिलीग्राम इंक्रीज इन ब्लड शुगर वी विल गिव 1 यूनिट ऑफ इंसुलिन। अब हमारा अगर 80 मिलीग्राम ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज है तो हम कितना यूनिट देंगे, 2 यूनिट देंगे, एज पर लो डोज करेक्शन स्केल। एज पर मॉडरेट करेक्शन स्केल वी विल गिव 2 यूनिट इंसुलिन एंड एज पर हाई डोज करेक्शन स्केल वी विल गिव 3 यूनिट। तो टू करेक्ट करेक्शन स्केल में क्या है कि टू करेक्ट 40 to 50 मिलीग्राम ऑफ राइज ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल व्हाट एवर यूनिट वी गिव। तो इन लो डोज 1 यूनिट, मॉडरेट में 2 एंड हाई डोज स्केल में 3। टू करेक्ट 40 to 50 मिलीग्राम ऑफ राइज ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल, जितना बड़ा होगा उसी हिसाब से इसको देते हैं। अब नाउ करेक्शन डोज स्केल डिपेंड्स ऑन टीडी, जैसे हमने बताया हाउ मच 1 यूनिट ऑफ इंसुलिन विल लोअर ग्लूकोज। ये हम पता करते हैं इंसुलिन सेंसिटिविटी या करेक्शन फैक्टर होता है। ये क्या होता है कि 1 यूनिट किसी भी आदमी में कितना इंसुलिन, कितना ग्लूकोज कम कर देगा, ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं 17 डिवाइडेड बाई टीडी। और जो टीडी है वो क्या करता है, बॉडी वेट के अनुसार होता है, बॉडी वेट इंटू डोज ऑफ इंसुलिन, इससे हम क्या कैलकुलेट करते हैं, टीडी कैलकुलेट करते हैं। वेट मल्टीप्लाइड बाई डोज ऑफ इंसुलिन 0.3 से लेकर 6 के बीच में कुछ भी हो सकती है। जैसे कि हमने बताया कि द डोज ऑफ इंसुलिन डिपेंड्स ऑन द मेनी फैक्टर्स विच आई हैव डिस्कस प्रीवियसली। इफ वेट ऑफ ए पेशेंट मान लीजिए 70 kg है तो उसमें 70 और उसकी हम डोज कितनी दे रहे हैं, 0.535। अब 0.5 हम किसको देते हैं, 0.5 हम किसको देते हैं, 0.5 हम इसे देते हैं जो ओवर वेट है। अगर हमारा 70 kg का पेशेंट है, ओवर वेट है, तो हम इसको 0.5 देंगे। नॉर्मल वेट है 0.4 देंगे। अंडर वेट है, ओल्डर है, हीमोडायलिसिस है, 0.3 देंगे। इंसुलिन रेजिस्टेंस है या कार्टिकोस्टेरॉइड ले रहा है, ओबीज है, तो हम 0.6 देंगे। ठीक है, तो इसके अनुसार हम इंसुलिन की डोज डिसाइड करते हैं। तो सपोज हमारा 70 kg का पेशेंट है, कैसा है ये, ओबीज है,
तो इसलिए इसका टोटल डेली डोज कितनी आई 35। अब सेंसिटिविटी फैक्टर और करेक्शन फैक्टर 1700 और किसी किसी जगह 1800 भी होता है, डिवाइडेड बाई 35 मैंने टीडी से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 56। इसका मतलब ये हुआ कि यदि इस पर्सन को भिन्न भी गिव 1 यूनिट ऑफ प्लेन इंसुलिन और इंसुलिन एस्पार्ट और लॉन्ग को छोड़ के, तो कितना ग्लूकोज कम करेगा ये 56 मिलीग्राम पर डेसीलीटर ब्लड ग्लूकोज विल डिक्रीज। तो दिस कैलकुलेशन सजेस्ट कि 1 यूनिट इंसुलिन विल डिक्रीज 56 मिलीग्राम ऑफ ग्लूकोज, hence the patient have 26 milligram of per deciliter glucose, then we will give correctional dose of 1 unit insulin plus meal bolus dose। क्योंकि आप 206 में से अगर हम कम करेंगे कितनी 56 कम करेंगे तो 1 यूनिट देंगे तो 56, तो कितना रह जाएगा उसका रह जाएगा 150। अगर हम 1 यूनिट इसको देंगे तो उसका ब्लड ग्लूकोज 206 से कम होके कितना आ जाएगा 150 पे आ जाएगा। ये डिजायरेबल है, तो ये तो हम 1 यूनिट एक्स्ट्रा देंगे। करेक्शनल डोज 1 यूनिट प्लस मील बोलस डोज, जितनी भी कैलकुलेशन होके आती है जितना हमें मील लेना है। और ये किसके अनुसार है, लो डोज करेक्शनल स्केल के अनुसार है। यदि कोई पेशेंट ऐसा है जिसको हमें मीडियम डोज करेक्शनल स्केल देना है तो हम उसे 2 यूनिट देंगे, और कोई पेशेंट ऐसा है जिसे हमें हाई डोज देनी तो उसे हम 3 यूनिट देंगे। अब ये डिपेंड करेगा कि हम कौन सी करेक्शन स्केल फॉलो करें, ये डिपेंड करेगा टीडी पे। कैसे डिपेंड करेगा, अगर टीडी है किसी का पेशेंट का 21 से 42 तो हम उसको 1 यूनिट देंगे। किसी का टीडीडी आता है 43 to 84, देन वी विल गिव 2 यूनिट। मींस मॉडरेट करेक्शनल स्केल, मॉडरेट डोज करेक्शनल स्केल विल बी यूज्ड। इफ total daily dose comes between 85 and 125, then we will give 3 unit. So this is calculation. Suppose अब किसी पेशेंट का जो है टोटल डेली डोज मान ली 43 और 84, इफ टोटल डेली डोज इज कितने यूनिट देंगे तो हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड करें। 1700 से डिवाइड किया हमने, मान लो 50 एवरेज वैल्यू ले ली बीच में। किसी पेशेंट का टीडी 43 और 84 के बीच में, तो हमने एवरेज ले लिया 50 मान लिया, तो हमारा जो सेंसिटिविटी फैक्टर आया 34। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम उसको 1 यूनिट इंसुलिन देंगे, ये किस ग्रुप में आएगा, ये आएगा 2 यूनिट वाले में। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम उसे 2 यूनिट इंसुलिन देंगे तो उसका ब्लड ग्लूकोज कितना कम होगा 34। जिस पेशेंट की टीडीडी टोटल डेली डोज 43 और 84 के बीच में है, यदि हमें उसका 2 यूनिट इंसुलिन देंगे तो उसका 34 ब्लड ग्लूकोज कम होगा। एज ए रिजल्ट बी कम्स ऑन द कंक्लूजन, क्या कंक्लूजन है कि मील बोलस डोज ऑफ इंसुलिन बिफोर ईच मील इज, कितना हमें देना है। एक तो हमें करेक्शन डोज देना है जो लो हो सकता है, मीडियम हो सकती है, ये हाई करेक्शनल डोज स्केल के अनुसार हो सकती है। अमाउंट ऑफ इंसुलिन कितना हो सकता है, 1 यूनिट हो सकता है, 2 यूनिट हो सकता है, 3 यूनिट हो सकता है। फॉर ईच 40 to 50 मिलीग्राम पर डेसीलीटर ब्लड ग्लूकोज राइज, प्लस हमें मील बोलस देना होता टू मैनेज इंक्रीज ऑफ ग्लूकोज ड्यू टू मील विच हैज टू बी टेकन। सो बिफोर मील वी हैव टू गिव करेक्शन डोज प्लस मील बोलस डोज। नाउ दिस द सिंपल स्टेप्स फॉर कैलकुलेशन फॉर ऑर्डरिंग सबक्यूटेनियस इंसुलिन इन ए हॉस्पिटल। सपोज ये रेजिमेंट कौन सी हम फॉलो करेंगे, बेसल बोलस इंसुलिन डोज कैलकुलेशन इन ए पेशेंट। अगर किसी पेशेंट का वेट सपोज 80 kg है, देन फर्स्ट स्टेप है कि हम पहले उसको टीडी कैलकुलेशन करेंगे। वो पेशेंट हमारा कैसा है, ओबीज है, और रीनल फंक्शन उसका कैसा है, नॉर्मल है। ये दे रखा है बेसल मेटाबॉलिक रेट ऑफ 28 kg पर स्क्वायर, इसका मतलब ओबीज पेशेंट का डिक्रीज चाहिए। तो टीडी कैलकुलेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, इंसुलिन डोज इनटू बॉडी वेट। इंसुलिन डोज कितना लेंगे 0.5 से, ओबीज में 0.5 देते हैं, और 80 क्या है बॉडी वेट है, तो कितना आया टीडी हमारा 40 यूनिट आया। अब 40-40 यूनिट आया तो किस ग्रुप में आएगा, ये आएगा लो डोज वाले ग्रुप में आएगा। अब भी कैलकुलेट बेसल इंसुलिन डोज, तो इसका 50% होता है बेसल, 50% होता है मीलस बोल। तो बेसल इंसुलिन डोज 50% ऑफ टीडी कितना हुआ, टीडी कितना है हमारा 40 यूनिट, तो ये कितना हुआ
20 यूनिट, 20 यूनिट हो गया। 20 यूनिट हम देंगे लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन बेड टाइम बिफोर डिनर। अब हम मील बोलस इंसुलिन कैसे कैलकुलेट करेंगे? बोनस इन्फ्यूजन डोज पर मील 50% ऑफ द टीडीएस करते हैं, तो 50% कितना हो गया 40 का, 50% हो गया 20 यूनिट। और 20 यूनिट को हम नंबर ऑफ मील्स में डिवाइड करते हैं, क्योंकि 50% एक बार में नहीं, तो इसको 3 बार में देना, तो 20/3, तो हम इस एक बार में कितना देंगे 6.3 यूनिट। ये रैपिड एक्टिंग इंसुलिन देंगे बिफोर ईच मील, और हमें कितने देने हैं 3 मील, तो 3 मील में हमारा 20 यूनिट आ जाएगा। ये पेशेंट और नर्स estimated that patient is only eating 50% of the food on the tray। अगर मान लीजिए उसने जो यूजली पर डे खा रहा है, उसने एक दिन क्या खाया, आधा खाना खाया, तो हम इसका 6.3 ना देके उसको हम कितना देंगे 3 यूनिट देंगे इंसुलिन। नाउ वी विल सी द करेक्शनल स्केल एस्टिमेशन। असेसमेंट ऑफ करेक्शनल स्केल इंसुलिन इज बेस्ड ऑन टीडी, टीडी पे बेस्ड है। फॉर ए पेशेंट विद टीडी ऑफ 40 द लो करेक्शनल स्केल शुड बी यूज्ड। हमने बताया कि ये टीडी पे डिपेंड करेगा। अगर टीडी हमारी 21/42 देन 1 यूनिट लो डोज करेक्शनल स्केल। इफ इट इज 43 and 84, कितने का डिफरेंस है 42 का डिफरेंस है 21, देन 2 यूनिट। अगर 85 और 125 देन इतना। ये ऑलमोस्ट 41 का डिफरेंस आ रहा है इसमें, ठीक है। इसमें 21 का डिफरेंस है 21, और इसमें कितने का डिफरेंस है 41 का डिफरेंस है, और इसमें भी इसमें 40 का डिफरेंस है 40, इसमें 40 का डिफरेंस है 85 से 120। Now monitoring and adjusting insulin dose. If our fasting glucose reading is more than 130 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, इसका मतलब ये ज़्यादा है। नॉर्मल कितनी होनी चाहिए, लेस देन 130 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। तो हमें क्या करना है, जो हमने डिनर लिया है बिफोर डिनर जो लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन है उसकी 1 या 2 यूनिट बढ़ा दें। 1 या 2 यूनिट ही बढ़ाई जाती है, किसी इंसुलिन की एक साथ 4-5 यूनिट नहीं बढ़ाई जाती है, अदरवाइज हाइपोग्लाइसेमिया की रिस्क होगी। और या फिर हम जो हमने डिनर में जो डाइट लिया है उसे कम करें, या फिर हम डिनर लेने के बाद थोड़ा सा वॉकिंग कर लें, इससे हमारी फास्टिंग ठीक हो जाएगी। अगर हमें हमारी जो बिफोर लंच यदि हमारी ग्लूकोज रीडिंग ज़्यादा आती है, तो हमने जो ब्रेकफास्ट के समय पे जो रैपिड एक्टिंग इंसुलिन लिया है उसकी डोज बढ़ा दें, या फिर हमने जो ब्रेकफास्ट लिया है उसे कम कर दें। और यदि हमें बिफोर डिनर यदि हमारी रीडिंग ज़्यादा आती है, तो हमने जो लंच के समय पे जो रैपिड एक्टिंग इंसुलिन लिया है उसकी 1-2 यूनिट बढ़ा सकते हैं, या फिर हम जो लंच में जो डाइट लिए उसे कम कर सकते हैं। और यदि हमारी डिनर लेने के 2 घंटे बाद यदि रीडिंग हमारी 180 से ज़्यादा आती है, तो जो या तो हम डिनर की मात्रा कम करें, या फिर जो रैपिड एक्टिंग इंसुलिन है उसकी मात्रा बढ़ा दें, तो हमारा पोस्ट प्रेंडियल ब्लड शुगर नॉर्मल हो जाएगी। दूसरा है हमारा करेक्शनल स्केल इंसुलिन रेजिमेन, इसे हम स्लाइडिंग स्केल इंसुलिन भी कहते हैं। तो दिस इज नॉट अप्रोप्रिएट टू ट्रीट सस्टेन हाइपरग्लाइसीमिया। पूरे दिन हाइपरग्लाइसीमिया रहती है, लेकिन इंसुलिन हम केवल 2 पार्ट में ही लेते हैं। इसमें 2 इंसुलिन लेते हैं, एक सॉल्युबल इंसुलिन होता है, एक एनपीएच इंसुलिन होता है। सॉल्युबल इंसुलिन कितना पार्ट होता है 30, और एनपीएच होता है 70। तो हम जो टीडी कैलकुलेट करते हैं टोटल डेली डोज, उसका 2/3 इन द मॉर्निंग एंड 1/3 इन द इवनिंग। मॉर्निंग में बिफोर ब्रेकफास्ट एंड इवनिंग में बिफोर डिनर। If postprandial sugar is more than 200, तो इंस्टेड ऑफ soluble insulin we should use rapid acting insulin. For critically ill patient, provide only basal insulin. Rapid acting insulin is not given. अब कोई पेशेंट है अगर हॉस्पिटल से घर में आया है, तो हमें आईवी से अगर ओरल सबकूटेनियस शिफ्ट करना है, तो उसकी डोज का रिडक्शन जो है वो बेसल डोज में कितना होना चाहिए 20 to 30%, उतना ही नहीं देंगे। इंसुलिन थेरेपी फॉर पेशेंट ऑन टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन टीपीपी। तो इसमें क्या है, माइल्ड हाइपरग्लाइसीमिया कैन बी मैनेज्ड बाय एडिशन ऑफ रेगुलर इंसुलिन टू टीपीएम। रेगुलर इंसुलिन हम ऐड करेंगे, और यदि हमारी 1 बोतल ऑफ ग्लूकोज है, 1 बोतल ऑफ 5% ग्लूकोज है, तो हम उसमें कितना बनाएंगे
3 to 4 यूनिट प्लेन इंसुलिन मिलाएंगे। या फिर दूसरा नियम कर लीजिए कि यूजिंग स्टार्टिंग डोज 1 यूनिट फॉर एवरी ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन द टीपी। तो जो भी ड्रिप लगी है उसको 0. हम 1 यूनिट देंगे 1 ग्राम के लिए फॉर एवरी ग्राम ऑफ। अगर किसी में 25 ग्राम है कार्बोहाइड्रेट मान ली ग्लूकोज है तो हम कितना देंगे उसमें 2.5 यूनिट देंगे। वही बात आ जाती है, वही नियम आ जाता है। I hope that this video will provide very useful knowledge. If you like the content of this video, then please like it and subscribe it so that you will get notification with time. And with this, I am very thankful to all of you.